Students, today we will discuss about introduction part of object-oriented programming using C++. C++, originally known as C with classes, means all the functions of C and a new concept class is used in C++. It was developed at AT&T Bell Laboratories in the early 1980s by Bjarne Stroustrup. Two languages contributed to its design. One is C, whose low-level features are used, and other is Simula 67, from which class concept is taken. C++ is an object-oriented language, we know that. Some other languages, object-oriented languages are Smalltalk, Ada, and Java, and so on. We have already learned C language, which is procedure-oriented language, or we can say that it is a function-oriented language, and C++ we know as an object-oriented language. Let us see some differences between these two types of languages. One is procedure-oriented language and other is object-oriented programming language. In case of procedure-oriented language, your programming, emphasis is on doing things, means how an objective is achieved. What are the steps to solve a particular problem? That is algorithm. While in case of object-oriented programming, emphasis is on data rather than functions. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस है. इन केस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लार्जर प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज फंक्शंस. एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. जब तक कि हमें एक स्मॉलेस्ट यूनिट ना मिल जाए तब तक हम उनको डिवाइड करते जाते हैं. इस तरह से जब हम किसी एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को स्मॉलर ऑब्जेक्टिव में, स्मॉलर को और फर्दर स्मॉलर में, इनमें डिवाइड करते हैं, then it is known as top down approach of programming. In case of object oriented programming, larger programs are divided into individual entities known as classes. Most of the function of program in case of procedure oriented programming language shares global data, but in case of object oriented programming, functions can use the data which is defined in the same class only. क्लास के अंदर, जो क्लास हम नया कॉन्सेप्ट C++ में करने जा रहे हैं, क्लास के अंदर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, डेटा एंड फंक्शंस. तो जो डेटा हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया है और जो फंक्शंस हमने डिफाइन किया, वो फंक्शंस ही उस डेटा को यूज कर सकते हैं. क्लास से बाहर का डेटा, क्लास से बाहर के फंक्शंस उस डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे. इन केस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देयर इज नो मैकेनिज्म टू सिक्योर द डेटा. क्योंकि जब हम ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं, ग्लोबल डेटा को हम यूज कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है उसमें, क्योंकि हर एक फंक्शन, हर एक सब प्रोग्राम उस पर्टिकुलर डेटा को यूज कर रहा है. इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा सिक्योरिटी इज द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यू कैन से दैट इनके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज टॉप डाउन अप्रोच एंड object oriented programming is bottom up approach. Now these are the main concepts used in object oriented programming: class, object, data encapsulation, data hiding, data abstraction, inheritance, polymorphism. class होती क्या है? class is the smallest unit हम कह सकते हैं, या basic unit हम कह सकते हैं किसी भी C++ के प्रोग्राम में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्लास के अंदर दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, डेटा एंड फंक्शंस. इट मींस वी आर एनकैप्सुलेटिंग बोथ डेटा एंड फंक्शन in a single unit. That property is known as data encapsulation. This is data encapsulation. Now what are the objects? Yeah, what is object? Object is the instance of this class. For example, fruit is a class. Then apple, mango, orange, these are the objects of that class fruit. Now data hiding can be achieved with the help of defining the member as private. Data abstraction is we are using the things without going into the detail of that thing, without going into the detail of background detail of that things. This is what data abstraction is. Inheritance means
inheriting the properties of one class into the another. This concept is also use the property that is called reusing the code. Polymorphism is one thing may behave differently in different situations. ये हम सारे concepts आगे डिटेल में करेंगे. Now, what is structure? Before proceeding further in the C++, हमें थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा स्ट्रक्चर का, क्योंकि स्ट्रक्चर सी में हमने किया हुआ है. स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे क्योंकि जो क्लास है वो भी स्ट्रक्चर की ही एक एक्सटेंशन है, हम ये कह सकते हैं. तो स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर इज ए कन्वीनियंट टूल टू रिप्रेजेंट लॉजिकली रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स. स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग तरह के डेटा को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेम, रोल नंबर, मार्क्स. मीन्स हमने स्टूडेंट के नेम को डिफाइन करना है, हमने स्टूडेंट के रोल नंबर को डिफाइन करना है, हमने स्टूडेंट के मार्क्स को डिफाइन करना है. ठीक है, बट इन तीनों को हमने एक नाम देना है, तो हम इन तीनों को एक साथ एक नाम से डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, और उसका नाम हमने क्या दे दिया? स्टूडेंट. Once the structure student is defined, it can be treated as data type. एक बार हमने structure define कर दिया, फिर हम उसको as a data type use कर सकते हैं and can be used to create variable, और उसके हम variables create कर सकते हैं. जैसे student हमने एक structure बना लिया, right? जब student एक structure बन गया तो उसके objects क्या होंगे? For example, Amit is a object of student. Raman is an again object of student. जो जितने भी student हमारे क्लास में हैं हम उनके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. बट इट कैन नॉट बिहेव लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड इट डू नॉट परमिट डेटा हाइडिंग. स्ट्रक्चर के अंदर डेटा हाइडिंग नहीं होती. बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं वो सभी के सभी पब्लिक होते हैं, और ना ही ये बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है. बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है कि जैसे हम दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को ना तो आपस में ऐड कर पाएंगे, ना ही हम दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को ना हम ऐड कर पाएंगे, ना हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट कैन नॉट बिहेव लाइक बिल्ट इन डेटा टाइप. टू रिमूव these drawbacks, C++ use classes, an extension of structure. C++ attempts to bring user defined data type as close as built in data type. तो हम क्या करते हैं, अब C++ में क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर. और क्लास के अंदर ऐसी फैसिलिटीज हैं, या हम ये कहें कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसी फैसिलिटीज हैं कि हम एक क्लास डेटा टाइप को भी के ऊपर हम वो सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर पाएंगे जो हम एक सिंपल डेटा टाइप के ऊपर कर पाते हैं. इसीलिए हम इसको कहते हैं an extension of structure. C++ attempts to bring user defined data type as close as built-in data type, and also provide a facility to hide the data, which is the main property of hooks. Yes, we can hide the data in C++ program by defining the data as private. Now this is the program, one simple example of a structure, how we can define a structure, how we can access the variables of structure, how we can print, how can read, how we can print the variables of structure. So इसको हम करेंगे C++ की हेल्प से. Now this is the program of structure in C language. ये हमें पता है कि C language में हम दो फाइलें अपने सभी प्रोग्राम्स में इंक्लूड करते हैं, stdio.h and conio.h. Now how we can define the structure? This is how we can define a structure in C language. Struct is a keyword and student is the name given to this structure. इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल्स डिफाइन किए, करेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट. नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स. नेम इज ऑफ टाइप करेक्टर एरे, रोल नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड मार्क्स इज ऑफ टाइप फ्लोट. नाउ अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसके डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे और कैसे हम इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाएंगे. सबसे पहले क्लियर स्क्रीन मेन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं. क्लियर स्क्रीन हमने डिफाइन कर दिया, लिख दिया, ताकि हमारी स्क्रीन जो प्रीवियस है क्लियर हो जाए. मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि हम सभी को सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना आता है. नाउ this is how we can define the variables of a structure. struct कीवर्ड है, स्टूडेंट नेम हो गया, ये दोनों चीजें हमें लिखनी है. उसके बाद s1 and s2 are the two variables of
type struct student. Printf enter the name of first student. This is how we can read the name with the help of dot operator. S1 is the object or variable of student, and name is the name. We can read the name of first variable or first student. Similarly, S1 dot roll number of that student and marks of that student. Now S2, अब हमने वेरिएबल नेम चेंज कर दिया फोर्थ स्टेटमेंट में. देखिए यहाँ फोर्थ जब हम स्कैन अप कर रहे हैं S2, पहले तीनों में हमने क्या लिया S1. नाउ वी आर टेकिंग S2 एज ए वेरिएबल नेम. तो पहले तीनों जो हमने रीड किए नेम रोल नंबर और मार्क्स वो S1 वेरिएबल से रिलेटेड होंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के होंगे. सेकंड जब हम रीड कर रहे हैं नेम रोल नंबर और मार्क्स वो S2 से रिलेटेड है, S2 में स्टोर होंगे. S2 dot name, S2 dot roll number and S2 dot marks. Now printf is used to print these values. हमें ये भी मान के चल रहे हैं हम कि परसेंटेज एस का मतलब पता है आपको, परसेंटेज टी का मतलब पता है, परसेंटेज एफ का मतलब पता है. जब हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तब भी हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे. S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स. S1 के अंदर जो तीन वैल्यूज हमने स्टोर की थी S1 डॉट नेम के अंदर, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट मार्क्स, वो तीनों यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे. S2 जो ऑब्जेक्ट था या वेरिएबल था उसके जो नेम रोल नंबर और मार्क्स थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे. Okay, this is how we can write the programming of structure. Now for executing this program, control F9 will be used. Okay, इसमें एक एरर दिखा रहा है. हमें क्या एरर है यहाँ पर? क्लियर स्क्रीन हमें यहाँ नहीं लिखना है. क्लियर स्क्रीन हमने कहाँ लिखना है? नीचे, आफ्टर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स. Now control F9. No, there is no error. Enter the name of first student. Suppose मैंने नाम लिख दिया अमित. Second, roll number of first student 101. Marks of first student, it may be 65. Enter the name of second student, suppose Ram. Roll number of second student 102. Marks 87. Now अब हमने दोनों रिकॉर्ड्स को एंटर करा दिया. जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ एक और तो इन दोनों की वैल्यूज, दोनों रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है. तो पहले S1 की वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया, S1 का नेम, S1 का रोल नंबर, S1 का मार्क्स. उसके बाद S2 की वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया. S2 का नेम क्या था, S2 का रोल नंबर क्या था और S2 का मार्क्स क्या था. दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर. वी कैन एक्सेस द वेरिएबल्स. We can define the structure. We can create the variables or objects of structure. We can access the variables, read the values and display the values with the help of dot operator. Now in next lecture we will discuss about basic concepts of hoops. Thank you students.